Areas related to circles, class 10th, exercise 12.2, chapter number 12, question number 11. A car has two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115. Find the total area cleaned at each sweep of the blades. यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो कि 11 है, एक कार है टू वाइपर, कार के दो वाइपर्स हैं जो कि आपस में दोनों एक दूसरे के ऊपर नहीं आते, ओवरलैपिंग नहीं करते, और वाइपर्स ब्लेड्स जिसकी लेंथ जो है 25 सेंटीमीटर है, स्वीपिंग थ्रू जो स्वीप करता है वो कम्प्लीटली 115 एंगल तक स्वीप करता है, इतना एंगल वन वाइपर स्वीप करता है. तो फाइंड द टोटल एरिया क्लीन ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स. तो प्रत्येक वाइपर के द्वारा क्लीन किया गया एरिया बताना है, जो कि हम इसे सॉल्व आउट करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं. इसे समझने की कोशिश करेंगे. हेयर वाइपर, सो we now there are two wipers, so here we make wipers. This is the wipers and sweeping area. This is angle is 115 degree, and same another wiper and also sweeping area is 115 degree. So here we have given the radius 25 centimeter. This is also radius 25 centimeter, and also here radius is 25 centimeter. So we understand here theta our given 115 degree and radius of blades, radius of blade be 25 centimeter, 25 centimeters. So here theta we are given radius given, and each clean sweeping area. तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं. द लेंथ ऑफ वाइपर्स विल बी and radius of wiper here, let length of wiper be r centimeter and angle theta 115 degree. Total area clean
total area clean each wiper is equal to 2 multiply area of sector which is equal to 2 multiply theta oblique 360 pi r square. So here we get 2, theta is our 115 oblique 360, pi is 22 oblique 7, multiply radius 25 into 25. So हम इसे सॉल्व करते हैं. here 2 multiply 115 oblique 360 22 oblique 7 25 into 25. सो 5 से डिवाइड करते हैं पहले. 5 2s are 10 and 5 3s are 15 and 5 7s are 35 and 5 2s are 10. सो 2 से हम कैंसिल करते हैं. 2 1s are 2, 2 3s are 6 and 2 6 are 12. फिर 2 से अगेन कैंसिल करते हैं. 2 1s are 2, 2 1s are 2 and 2 1s are 2, 2 8s are 16. So here 11 multiply 23 multiply 25 and 25 625 oblique 18 7 ja 126. So we multiply करेंगे इसे 11 23 and 625. we get answer 15 8125 oblique 126 centimeter square. This is the area covered each blade is equal to 158125 oblique 126 centimeter square. This is our final answer. अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं. here question number 12 to warn ship for underwater rocks. A lighthouse spread a red colored light over a sector of an angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ship are warned. Use pi value is equal to 3.14. क्वेश्चन नंबर 12 को हमने देखा. यहाँ पर वार्न शिप यानी कि शिप को चेतावनी देने के लिए अंडर वाटर पानी के
जो सीज हैं, समुद्र हैं, उसमें एक रॉक्स, अंडर वाटर रॉक्स, रॉक्स यानी पहाड़ पे एक लाइट हाउस बनाया गया है सेपरेट, जो कि रेड कलर की लाइट को सेपरेट करता है। और वो जो सेपरेट करता है वो एक सेक्टर जो कि एंगल 80 डिग्री बनाता है, और डिस्टेंस जो कवर करता है वो 16.5 किलोमीटर तक की डिस्टेंस को कवर करता है। तो हमें वो एरिया निकालना है जो कि वो कवर करता है 16.5 किलोमीटर के एरिया को फाइंड आउट करना है। तो फाइंड द एरिया ओवर द शिप वॉन्ड, जहाँ तक वह वॉन्ड कर सकता है उस एरिया का हमें एरिया बताना है। तो और पाई की जगह हमें वैल्यू को पाई को 3.14 को यूज़ करना है। तो हम इसको अच्छे से समझें। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने रोक पे 80 डिग्री का जो थीटा है हमारा 80 डिग्री, this is formed sector. Here radius is given 16.5 kilometer. Here also radius 16.5 kilometer. Here given value we have theta 80 degree, r 16.5 kilometer. So a light house towers, a lighthouse throws a red light covered area which make a sector form. So area of sector is equal to theta oblique 360 pi r square. So theta is, we have 80 degree, here value is theta 80 degree oblique 360, पाई वैल्यू हमने देखा, यूज़ करना हमारे को पाई की वैल्यू 3.14. So 3.14 and r is our 16.5 multiply 16.5. So here सॉल्व करते हैं। 80 360 3.14 multiply 16.5 multiply 16.5. हेयर सबसे फर्स्टली 0 0 कैंसिल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया,
4 2s are 8 and 4 9s are 36 and here 3 के टेबल से 3 3s are 9 and 3 5s are 15 and 3 5s are 15. अगेन 3 से कैंसिल करते हैं. 3 1 जा 3, 3 5s are 15 and 3 5s are 15. So here we have to multiply 3.14 multiply 5.5 multiply 5.5. सो 2 से मल्टीप्लाई किया हमने इसको तो हमारा हो गया 6.28 एंड मल्टीप्लाई 5.5 मल्टीप्लाई 5.5. सो हमने 6.28 5.5 एंड 5.5 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आता है 189.97 किलोमीटर स्क्वायर. सो hence a lighthouse covered area is equal to 189.97 किलोमीटर स्क्वायर. सो इतना एरिया वो कवर करता है. सो हमने क्वेश्चन नंबर 12 बहुत आसान समझा. अब क्वेश्चन नंबर 13 को हम 13 करते हैं. हेयर क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 पहले रीड करते हैं. हेयर क्वेश्चन नंबर 13. ए राउंड टेबल cover has 6 equal designs as shown in figure. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making design at the rate of rupees 0.35 per centimeter square. Use √3 1.7. क्वेश्चन नंबर 13 हमारा एनसीईआरटी 12.2 का क्वेश्चन है जिसमें एक राउंड टेबल बनानी है जिसमें राउंड टेबल में 6 इक्वल डिज़ाइंस जो कि हमें फिगर में दिया है हम अभी बनाते हैं. इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर्ड रेडियस जो है उसका 28 सेंटीमीटर है. फाइंड द कॉस्ट मेकिंग डिज़ाइन में जो कॉस्ट लगा है उसका रेट जो है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर से रेट लिया गया है. तो और जहाँ √3 की वैल्यू जो है 1.7 हमें यूज़ करना है. तो हम इसको सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. यार मेक डिज़ाइन. राउंड टेबल है. This is our round table and सो मीट कराते हैं.
फिर दिस इज सेंटर एंड मीट इज दिस. Here design. This is design, and here we have given radius 28 centimeters, and the design rate of rupees 0.35 per centimeter square, and √3 की वैल्यू जो हमें लेनी है 1.7. Firstly we find theta. Here theta is equal to total angle make by a circle oblique 6 equal part designs, 6 equal parts, 6 equal parts in of design angle design. So थीटा निकालने के लिए 360, जो एंगल मेड बाय सर्कल इज 360 डिवाइड 6 36 डिग्री. 36 6 is the 36, sorry, 6 is the 36, 60 degree. Theta is our 60 degree. So here area of one design is equal to area of sector minus area of triangle. Area of sector minus area of triangle. So area of sector is equal to theta oblique 360 pi r square minus half r square sin theta. This is a area of triangle. फाइंड करने का फॉर्मूला है. So we put the values. Theta is equal to 60 and 360. Pi is our 22/7. R is 28 into 28. हाफ R की जगह हमने फिर 28
multiply 28 sin 60 degree. So here again 60 oblique 360 22 28 here 28 28 sin 60 की वैल्यू √3/2 √3/2 sin 60 value. So here we take common 28 easily common आ रहा है 28 into 28. सो अंदर बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर 60/360 22/7 माइनस हाफ रूट में 3/2. सो हेयर 0 0 कैंसिल होता है तो काट देते हैं 0 से 0. हेयर 60 डिग्री 360 एंड ऑल्सो 60 डिग्री. सो 0 0 काट दिया 6 के टेबल से हमने 36 काट दिया 6 बन जा 6 6 6 जा 36. 2 के टेबल से हम काट देते हैं 2 1 जा 2 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6. फिर यहाँ पर हम सॉल्व आउट करते हैं इसको. यार हमारे पास जो रिमेनिंग पोर्शन है 28 मल्टीप्लाई 28 और अंडर जो है ब्रैकेट के अंदर हमारा जो है 1/3 3 7 जा 21. हेयर चेक कर लेते हैं 3 7 जा 21 11/21 11/21 एंड हेयर माइनस √3/4. सो हेयर एलसीएम लेंगे तो 21 एंड 4 का एलसीएम हो गया 4 बन जाए 4 4 2 जा 8 84. 21 को 84 से डिवाइड किया सो 4 टाइम 4 1 जा 4 4 1 जा 4 √3 एंड 4 से अगर हमने 84 को डिवाइड किया 4 8 जा 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4 21. √3 की वैल्यू हमें गिवन है 1.7. here 28 multiply 28 4. सो हमने 44 माइनस 21 को 1.7 से मल्टीप्लाई किया 35.7 डिवाइड 84 मल्टीप्लाई में 28 28. सो कैंसिल करते हैं. हेयर हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है 20 और हेयर 6 डिज़ाइन एरिया निकालते हैं 6 डिज़ाइन area. So we multiply 6 also. This is one area of design. Designs.
दिस इज़ वन एरिया ऑफ डिज़ाइंस। सो 6 डिज़ाइन एरिया के लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हम कर रहे हैं 6 मल्टीप्लाई 28 इंटू 28। 44 में से 35.47 को माइनस किया तो हमारा आएगा आंसर 8.3 ऑब्लिक में 84 है। सो पहले वैल्यू काटते हैं इसको। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4। फिर 28 को काटते हैं। 28 को या 40 हमारा 42 है। 7 से काट देते हैं। 7 से काटते हैं। 7 6 ज़ा, पहले 3 से काटते हैं। चलो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 4 ज़ा 12 एंड 14 को 28 इजली कट रहा है, काट देते हैं। 14 1 ज़ा 14 एंड 14 2 ज़ा 28। सो वैल्यू इज दैट 2 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 8.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हेयर सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें जो वैल्यूज़ दी गई है, द रेट ऑफ डिज़ाइन दिया गया है रेट ऑफ डिज़ाइन इक्वल टू 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो वी यूज हेयर 2 मल्टीप्लाई 28.8.3 मल्टीप्लाई 0.35 and here centimeter goes centimeter. So rupees is, so हमने इसको मल्टीप्लाई किया। 28 2 ज़ा 56 एंड 8.3 मल्टीप्लाई 0.35. So our answer is rupees 162.68 rupees 162.68. So hence cost of design is equal to 162.68 rupees. Our final answer. हमने क्वेश्चन समझा। अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। टिक द करेक्ट आंसर इन द फ्लोइंग क्वेश्चन नंबर 14। टिक द करेक्ट आंसर in the following area of a sector of angle in degree of a circle with radius r is। ए ऑप्शन है हमारा p by 180 इंटू 2 पाई आर एंड बी इज द p ऑब्लिक 180 पाई आर स्क्वायर, सी इज द p 362 पाई आर एंड डी इज द p 720 and 2 pi r square. So here we find, देखते हैं क्या क्या हमारा गिवन है। सॉल्यूशन करते हैं इसको।
area here, area of sector, area of sector, area of sector in angle theta b p and radius b r. So here theta, area of sector, theta 360 pi r square. So theta is our p, (360) एंड पाई, और जो रेडियस है हमारा वो कैपिटल आर. दिस इज ए एरिया ऑफ सेक्टर. सो ऑप्शन हमें देखते हैं. हेयर P/180 2 पाई आर, 2 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 360 तो नहीं आएगा. यहाँ पर 180 है, वो भी नहीं. एंड हेयर 360 है लेकिन 2 पाई आर है, तो 2 से अगर हम 360 डिवाइड करें तो और कैंसिल हो जाएगा. हेयर डी ऑप्शन, डी ऑप्शन. देखते हैं. पी है 720 है, 2 पाई आर स्क्वायर है. अगर हम इसे 2 से करते हैं तो 360, जो कि इक्वल आ रहा है P/360 पाई आर स्क्वायर के, जो मैच कर रहा है. सो आवर राइट आंसर, करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. सो हमने समझा इसको. क्वेश्चन नंबर 14 किया हमने. हेयर क्वेश्चन नंबर 15 जो है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर्स ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर, एंगल 30 डिग्री. ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ corresponding मेजर सेक्टर एंड यूज पाई 314. हेयर एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर. हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है. तो हमने एक सर्कल बना दिया. हेयर सेंटर, एंगल इज 30 डिग्री, एंड हेयर सर्कल रेडियस इज 4 सेंटीमीटर. सो पाई की वैल्यू हमें यूज़ करनी है 3.14. थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. तो वी फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर. तो एरिया ऑफ सेक्टर हम फाइंड करते हैं. एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 पाई आर स्क्वायर. थीटा हमारे को मालूम है 30 डिग्री, 360, पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14, और आर जो है 4 × 4. सो हेयर 30/360 into 3.14 into 4 into 4. So 0 0 कैंसिल कर दिया. 3 1 जा 3, 2 2 6, and 4 1 जा 4, 4 3 जा 12. So here 3.14 multiply 4 divided 3, 12.56 मल्टीप्लाई करने पे 3 से डिवाइड करने पर हमारा आंसर आ रहा है 4.190 सेंटीमीटर. हेयर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर
area of circle minus area of sector. So here area of circle is pi r square minus area of sector अभी हमने निकाला 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर. पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14. आर इज 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस 4.19. सो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आएगा 15.24 माइनस 4.19. सो आंसर इज 46.06 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो हमारा ये आंसर हो गया मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर. (46.06 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर सेगमेंट AYB. AYB shown in figure. Radius of circle is 21 centimeter and AOB degrees is radius is given 21. Theta is also given 120 degree. So pi वैल्यू यूज़ करनी है हमारे को 22/7. एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 60 डिग्री का. दिस P, दिस ऑल्सो P एंड A B O एंड दिस इज B. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं. साइन 60 इक्वल टू हेयर डी बी ऑब्लिक में ओ बी. डी बी हमारा P है एंड ओ बी जो रेडियस है वो कितना है 21 सेंटीमीटर. साइन 60 वैल्यू होती है √3/2. P/21 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 21 √3 ऑब्लिक 2P. हेयर लेंथ ऑफ AB P प्लस P. सो लेंथ AB आएगा हमारा AP AD प्लस DB. सो 21 √3 प्लस 21 √3/2 इक्वल टू 42 √3/2. जिसे हम 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 4 2 2. तो लेंथ ऑफ AB 21 √3. सो